So hello everyone, how are you? I hope you're fine and I welcome you to Nagpal Academy. So in this video we are going to focus on our chapter number 1 of civics. So let's start without wasting the time. So in the starting of this chapter there is a story of the domestic worker Kanta. She works in the house of Mr. Jan, etc. And in the starting of the story, Kanta is saying that it's very good, Suja, that we get equal rights and we get equal vote that others get. In this election line, it doesn't matter that someone is poor or someone is rich. And her friend is saying, yes, you are speaking correct. And after that, Kanta goes on for voting in the voting booth, and she is saying that I will vote to the candidate who promised us to bring the pipe water for our area. And after that, she is saying his employer that by sir she will, and the Jain Sahib in which house she works is saying that we will see you afterward, Kanta. And now she is saying to her friend when she is going back to her house that Gudiya, her daughter, is going from fever and she has to take her to the doctor, and she said that I will finish my work and in the Jain Sahibs and I will ask for some advance, then I will take my daughter to the government hospital. At home, when she comes at home, she is saying to her daughter that please have some tea, you will be feeling better, and when I will come at evening we will go to the doctor. And she is wondering, or she is thinking that Gudiya even every time falls ill, often the basti is never cleaned. You can see in the picture that the area where she lives is not at all cleaned, and someone is smoking there, and it's very garbage on the street. After that, when she is working in the Jain Sahibs, her Mrs. Jain says that please make sure you work on the corners properly. And after that she asks for advance, and the Mrs. Jain is giving advance to him. That evening, and when she went to the doctor, she is standing in the line and she is thinking that Jar Madam and Jain Sahib may stand in this line to vote, वो सोच रही है कि जो जैन मैडम है और जो जैन साहिब हैं वो मेरे साथ खड़ते हैं लाइन में वोट करने के लिए, पर वो हमेशा मेरे साथ यही लाइन में क्यों नहीं खड़े होते गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आगे जब उनकी बेटी या उनका बेटा बीमार होता है। तो हमें एक क्वेश्चन पूछा गया लास्ट में कि आप क्या थिंक करते हो कि कांता का जो रीज़न है, जो डाउट है उसके माइंड में, वो क्यों सही है और आपके अकॉर्डिंग क्या रीज़न होंगे। सो गाइस, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो हम चैप्टर है इसे 2 पार्ट्स में कवर करेंगे और जो इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं मैं आपको पढ़कर सुनाऊँगा और उसके मीनिंग भी बताऊँगा हिंदी में। तो लेट्स स्टार्ट। कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो कांता है वो अपने लाइन में खड़ी है अपनी वोट को कास्ट करने के लिए, और उसके साथ बहुत लोग खड़े हैं। उसके एम्प्लॉयर अशोक जैन और छोटे लाल भी उस लाइन में ही खड़े हैं। पर जब उनका बेटा या बेटी बीमार होती है, पर वो उस लाइन में क्यों नहीं खड़े होते। वो सोच रही है कि हमारा इंडिया कितना अच्छा है कि सभी को एक वोट दी जाती है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है।
और आपको भी बताएंगे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है। तो यहाँ दिया हुआ है कि हम सभी को एक वोट दी जाती है, और इसे लेट मी टेल इन इंग्लिश दैट इट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर every person gets one vote and it's right. This is known as universal adult franchise. हमें सभी को एक वोट मिलती है और सभी 18+ लोगों को मिली जाती है। इसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। एंड आफ्टर दैट कहते हैं ये जो आइडिया है इसे बनाने के पीछे वो है इक्वलिटी, क्योंकि हम सभी माने जाते हैं एक, पर इंडिया में कास्ट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जो स्टेट्स हैं हमारी इंडिया की, उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को यूज़ किया ताकि सभी लोग अपने आप को इक्वल समझ सकें, किसी को ज़्यादा और किसी को कम ऐसे ना सोच सकें। और हमने फिर पढ़ा कि जो कांता है वो एक्साइटेड है वोट करने के लिए, एंड शी इज़ हैप्पी दैट सभी को एक वोट ही दी जाती है, चाहे जो अमीर है उसे दो नहीं, ऐसे नहीं होता, सभी को एक वोट दी जाती है। तो लास्ट में आइए अब हम देखते हैं कांता की जो लाइफस्टाइल क्या है। लेट मी फर्स्टली आई विल टेल इन इंग्लिश and after that I will translate in Hindi and explain you in the Hindi language. वो एक slum, she lives in a slum area and she has a drain behind her house. Her daughter is sick but she cannot take the day off from her work because she needs to borrow money from the employer to take her child to the doctor. अब हमें देखो हमें क्या बताया गया है कि अगर हम कांता के लाइफस्टाइल के पर देखें तो वो एक स्लम एरिया में रहती है और उसके घर के पीछे एक ड्रेन है, और वो अपने काम से एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकती, क्यों उसकी चाहे उसकी बेटी बीमार है फिर भी वो अपने काम से एक दिन के लिए छुट्टी भी नहीं ले सकती। आगे हमें बताया गया है कि कांता अपने काम कर कर वो थकती है, पर फिर भी वो अपने काम से कभी मीनिंग डे ऑफ नहीं लेती, छुट्टी भी नहीं लेती। और जब कांता वापस आती है तो अपने चाइल्ड को लेकर एक लंबी लाइन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आगे लग जाती है। कभी कभी मॉर्निंग में भी जो पुअर स्टार्टिंग जब मॉर्निंग होने लगती है तभी वो लाइंस में खड़े होने शुरू हो जाते हैं पुअर्स। चलो आगे हम स्टार्ट करते हैं हमारा पढ़ना। आगे हमें बताया गया है कि अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, और कैसी काइंड्स की इक्वालिटी है हमारे इंडिया में। कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डोमेस्टिक डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट, बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल। हाँ, अभी देखो इन 3 लाइन्स में हमें ये बताया है कि कांता एक डेमोक्रेटिक इंडिया में रहती है और उसकी जो डेली लाइफ है और जो उसकी वर्किंग कंडीशंस हैं, या वो जो काम करती है वो इक्वल होने के बहुत दूर है। कोई मान लीजिए कोई कंपनी का हेड है और कोई हमारे घर में जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं आप उनका लाइफस्टाइल देखिए, वो तो कितना काम करते होंगे। जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं किस के घर पे जाके काम करते हैं, और जो हेड होते हैं वो अपने कमरे या कैबिन में जाके आराम से काम करते हैं। वो इक्वालिटी से बहुत ही ज़्यादा इनमें डिफरेंस है। कहते हैं अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। हम अब मीनिंग अगर हम पुअर होने को साइड पे रखें फिर भी इंडिया में बहुत सारी इनइक्वालिटी हैं डिफरेंट वेज में। उनमें से हम कुछ अभी आकर रीड करते हैं। हमें 2 स्टोरीज़ के थ्रू हम एक रीड करेंगे इन्हें। सो हमें बताया गया है कि हम जो ये स्टोरीज़ पढ़ेंगे वो रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, ये रियली हुए हैं लोगों के साथ। तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि हमारी इंडिया में सबसे पहली एक जो होती है, इंडिया में सबसे पहली इनइक्वालिटी जो होती है वो है कास्ट सिस्टम।
जो रूरल एरियाज़ होते हैं उनमें कास्ट को बहुत ही ज़्यादा ऊपर माना जाता है। जिसकी कास्ट अच्छी है उसे वैसा ही काम मिलेगा। मान लीजिए कोई क्षत्रिय है या कोई है खान, उसे बहुत ऊपर काम दिया जाएगा। और अगर कोई है मीनिंग बहुत ही ज़्यादा लो कास्ट है, उसे कम काम दिया जाता है। ये सबसे ज़्यादा पुराने समय में भी होता था और आजकल कम हुआ है, पर अभी भी थोड़ा होता है। आगे हमें बताया गया है कि जब आप बहुत ज़्यादा छोटे होते थे, आप अर्बन इंडिया में अगर रहते थे, तो अगर आप छोटे होते से ही अर्बन में रहते हो तो आपको कास्ट में कोई बिलीव नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो अर्बन इंडिया है उसमें कास्ट को में बिलीव नहीं किया जाता। अगर आप रूरल इंडिया में रहते थे तो आप में थोड़ा सा आप कास्ट में बिलीव करते हैं, क्योंकि हमारा जो रूरल इंडिया है वो अभी भी कास्ट में मीनिंग कास्ट में वो रखता है, अपना विश्वास रखता है। तो आगे हमें दिया गया है कि जो हमारे जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स होते हैं या कोई और जो अलग अलग हमारे न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें भी लिखा जाता है कि जो कास्ट सिस्टम है वो इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुकी है। और अगर हमें इसे दूर करना है या अगर हमें कास्ट सिस्टम से अपना विश्वास उठाना है तो हमें अपने या खुद दूसरे लोगों को समझाना चाहिए कि जो कास्ट होती है उसमें विश्वास ना रखें और उससे अपना विश्वास उठाकर कहीं अच्छे कामों में लगाएं। तो आगे हमें चलिए हम एक जो हमारी स्टोरीज़ है 2 स्टोरीज़ हैं हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली स्टोरी है एक दलित चिल्ड्रन की। आप सबसे पहले आपने पढ़ा होगा क्लास 6 की बुक में दलित टर्म होती क्या है। तो दलित टर्म उन लोगों के लिए यूज़ की जाती है जो बहुत ही ज़्यादा लोअर कास्ट के लोग होते हैं। दलित का प्रॉपर मीनिंग होता है ब्रोकन, मतलब टूटा हुआ। और आगे हमें बताया गया है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट, उन्हें बहुत ज़्यादा लोग इन्फीरियर, अपने आप को वो इन्फीरियर मानते भी हैं और दूसरे लोग उन्हें डिस्क्रिमिनेट भी करते हैं। तो आगे अब हम पढ़ेंगे कि ये किसके साथ हुआ और कैसे हुआ। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का आपने नाम बहुत ही ज़्यादा सुना होगा। ये एक फेमस दलित राइटर थे और जब उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी में लिखी थी, उन्होंने अपनी स्टोरी उन्होंने अपना बारे में बताया। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है जुथान में उन्होंने लिखा कि उन्होंने कहा कि मुझे छोटे होते ज़मीन पर बैठना पड़ता था और जो ऊपरली कास्ट के लोग होते थे उन्हें ऊपर बिठाया जाता था और मुझे फ्लोर पे। और कहते जो मैट था जिसमें वो बैठता था वो पहले ही ख़त्म हो जाता था, उन्हें जब वो बैठने लगता था या उसे आगे कर दिया जाता था ताकि वो उस पर बैठ ना सके और ज़मीन पर ही बैठे। और जो मैट पे सारे वो जो लोग बैठ जाते थे पहले ही जब वो आता था। और आगे लिखा जाता है कि मुझे बिल्कुल गेट के साथ में बिठाया जाता था, जो लास्ट गेट था उसके साथ में बिठाया जाता था और कभी कभी मुझे दिखता भी नहीं था कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। एंड आफ्टर दैट इट्स रिटन कि मुझे कई बार वो ऐसे ही मार देते थे और उनके पास कोई रीज़न नहीं होता था उन्होंने मुझे क्यों मारा। और एक बार जो हेडमास्टर थे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के, उन्होंने उनसे एक बार जो पूरे स्कूल को स्वीप करने के लिए कहा और जब वो स्वीप करने लगे तो उनके फेस पे इतनी सारी डस्ट आ गई और जो उनका अंदर भी चली गई डस्ट और उन्हें 4 दिन तक वो करते रहे। जब उनके जो फादर थे वो उससे वहाँ से गुज़र रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा स्वीप कर रहा है। तो उन्होंने सोचा और उनके पास गए और उनके हेडमास्टर को कहे
कि एक दिन आप यहाँ मेरा बेटा ऊपर बैठ के पढ़ेगा। और यही कहकर उनका जो हाथ लेकर चले गए। और जो नेक्स्ट हमारी जो स्टोरी है और जो आगे का रह गया है वो हम नेक्स्ट में आगे पढ़ेंगे। इतना रह गया है, हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो गाइस, थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।